clearly? Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine. Okay. Yeah. Okay, I was saying, kid, you have to remember this question. Okay, this is the question you have to remember for the heat transfer. Okay, and this is the value of the thermal resistance. Now you are using a composite slab here. So this composite slab is एक second बेटा एक second क्योंकि एडमिट हो रहे हैं अच्छा एक चीज है what I am saying right now that the strength of your class is decreasing. So I am telling you that at the end I will deduct the marks of the attendance. This is what I am telling you. Okay, I have the 10 marks I usually give about the attendance plus assignments. So I have the authority that I can deduct your marks from there. So kindly make sure that you should be present in my class. ठीक हो गया अच्छा now here you are using the two slabs, okay? One is the L1 slab, this one is the L1 slab, and second one is the L2 slab. मतलब L1 से मुराद है कि L1 thickness है और L2 भी thickness है. So you are using two slabs, slab 1 and slab 2. ठीक है? You want to find out the temperature or the steady heat transfer rate, ठीक है? Or the conduction rate, ठीक है? So we will deal these two slabs individually. First, we want to find out what would be the temperature at Tx, okay, at the interface. So for that purpose, we will use the first relation that is K2, okay, area A, Th, the temperature of the heart reservoir on the right hand side. Obviously, this temperature will be lower compared to the heart reservoir, okay. So lower temperature, which is Tx, they have mentioned the temperature Tx at the interface and divided by the L2, that is the thickness of the slab 2. In the same way, on the right hand side, you have slab 1, okay, K1A, Tx is the higher temperature compared to the cold reservoir divided by the L1, okay. So what you have to do is you have to find out the interface temperature. And how you can find out the interface temperature? You can simply these two equations are equal, so you can simply rearrange the equation and you will be able to find out the Tx by taking the common from these two equations. So this would be the relation. Okay, you will use this value either in this equation of the equation of the slab 2, or you can use it for the equation of the slab 1. Okay, so when you will put the value of Tx, the end result would be something like that. This, okay, so the conduction rate would be like this one. So when you have composite slabs, okay, so conduction rate for a single slab, equation for the conduction rate of a single slab is this one. Okay, yeah, Ka Th minus Tx over L2, ठीक है और ये single के लिए है. When you are using the composite slabs, equation will become something like this one. Here you can see that it is dependent upon the thickness of the slab 1, thermal conductivity of the slab 1, again thickness of the slab 2, and thermal conductivity of the slab 2. Or more simply, you can see कि you can say कि L1 किस over L over K किसके बराबर होता है? Thermal resistance. So L over K L1 over K1 can be written as R1 and L2 over K2 can be written as R2. ठीक है? So overall ऊपर की पूरी इक्वेशन आपकी सेम है, ठीक है, ये सारी चीज आपकी सेम है, ठीक है. आज आके आपका क्या बना है? L1 over K1 बना था और प्लस L2 over K2 बना था. We can write it as a R1 plus R2, और simply हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? अगर we have n number of slabs तो हम summation Ln over Kn यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब क्लियर हो गई है या अभी कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सर. बेटा किसी का क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ क्लियर है तो क्लियर है, ठीक है. अगर क्वेश्चन है ही कैन आस्क मी राइट नाउ, ठीक है. यू कैन आस्क द सेम क्वेश्चन 10 times and I will not
आई विल ऑलवेज गिव यू द आंसर. सो अगर आपके पास बेटा क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी को समझ ना आई हो. शर्म वाली कोई बात नहीं होती, आगे पीछे कोई शर्म नहीं करते हैं हम लोग. क्वेश्चन पूछते हुए शर्म आती है कि साथ वाला जो है वो क्या सोचेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन किया है. तो आगे पीछे हम लोग जो उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं उनमें शर्म नहीं आती है हमें. सर समझ नहीं आई क्वेश्चन 18.35 के बाद क्या किया. 18.35 के बाद बेटा. यस सर. अच्छा एक जी बेटा. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे tx लिया है उन्होंने और tx को किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दिया है. मतलब they put the value of tx, you can put the value of tx in this question or you can put the value of tx in this question. For both the questions, ठीक है, the answer would be this one. ठीक है, सेम आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे जब इन्होंने किया है, ठीक है, तो आपके पास जो नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है, ये आपके पास आई व्हेन यू आर यूजिंग द कंपोजिट स्लैब्स एंड यू आर यूजिंग द टू स्लैब्स. ठीक है, फॉर सिंगल स्लैब आपके पास इक्वेशन क्या थी, ये थी कि के ए टी एच माइनस टी सी अवर एल कह लें, मतलब सिंपल जो आपकी इक्वेशन थी. ठीक है, here the only difference between it is कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिंपल L था और ऊपर आपके पास सिंपल K था जो आपकी सिंगल स्लैब के लिए थी. ठीक है, तो जब आपने कंपोजिट स्लैब्स किया तो ये K जो है L1 ओवर K1 प्लस L2 ओवर K2 बन गया. और L ओवर K हमें पता है कि आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी R वैल्यू कहलाता है. तो इसे मैं R1 लिख सकता हूँ एंड आई कैन राइट इट लाइक R2. ठीक है, सो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, अगर आप ना भी लिखना चाहें इट्स अप टू यू. ठीक है, तो यहां तक बेटा समझ में आ गई आपको बात. यस सर. ओके, इन द नेक्स्ट सिनेरियो क्या हुआ है कि नेक्स्ट केस के अंदर उन्होंने ये किया है कि इसको, क्योंकि जो चीज चेंज हो रही है या डिपेंडेंट अपॉन द स्लैब और कंपोजिट स्लैब या मटेरियल्स पे, वो ये डिनोमिनेटर वाली है. ठीक है, तो आप इसे समेशन जितने भी आपके पास n नंबर ऑफ अगर मटेरियल्स होंगे, n इक्वल टू 0, ठीक है, और आप अप टू n तक जा सकते हैं. ठीक है, ln ओवर kn होगा. ठीक है, बस ये है इसके अंदर. अब क्लियर हो गया बेटा. यस. चले, अभी भी कोई पूछना चाहे बेटा, कोई मसला नहीं है मुझे. चलें, अच्छा अब आ जाते हैं कन्वेक्शन. कन्वेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है. कन्वेक्शन बेसिकली टेक्स प्लेस इन फ्लूइड. ठीक है, लिक्विड को भी हम फ्लूइड कहते हैं, गैसियस स्टेट को भी हम फ्लूइड कहते हैं. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं लिक्विड फेज में जो है या गैसियस स्टेट में द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन टेक्स प्लेस. और सिंपल प्रोसेस है इसका बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास लेट्स सपोज, होल्ड ऑन अ सेकंड बेटा, here you have this beaker, इसको beaker कंसिडर करें in which you have a water. ठीक है, और you are basically heating with, यहाँ पे आप इसको हीट कर रहे हैं with some flame. ठीक है, जस्ट ये इसको फ्लेम कंसिडर करें. ठीक है, अब क्या होगा कि बेटा आपके पास सबसे पहले कौन सा हीट अप होगा. ऑब्वियसली the water at the bottom जो है वो हीट अप होगा. ठीक है, सो heated water की डेंसिटी, what do you know about the density of the heated water? It will be lower. ठीक है, its density will decrease. So as a result क्या होगा कि यहाँ पे जो water होगा it will move on this side और this side. क्यों, मैं बताता हूँ आपको. And heavy water will, जो आपके पास upper water होगा वो क्या होगा, heavy होगा, because it is colder compared to this water. So as a result its density will be higher compared to this one. So it will come downward
and the water at the bottom, it will move toward the sides and then in the upward direction. ठीक है. अब let's suppose if you are using some heavy metal ball है जिसका आप bowling में use करते हैं, heavy ball, and if you will place it at the within the tub of the water, ठीक है, जब आप place करेंगे तो क्या होता है? वो नीचे चला जाता है, नीचे जाता है and water comes out from the side. मतलब अगर आपने फिर टॉप तक भरी हुई है बाल्टी और if you Yes, are sir. placing ball at the center, पानी कहाँ से जाता है? साइडों से बाहर गिरने लग पड़ता है. ठीक है, वो बॉल सीधा नीचे जाएगा. सेंटर में अगर आप रखते हैं, सेंटर में सीधा नीचे जाएगा, पानी साइडों से बाहर आएगा. क्यों? कि heavy object will go in the straight downward direction. It will move the water from the surrounding to the sidewards. ठीक है, and it will go in the upward direction. और क्या होगा कि आपका पानी जो है साइडों से बाहर आएगा. ठीक है, in the same way it is happening कि you will see that कि बॉल क्यों नीचे गया, उसकी डेंसिटी हाई थी. When you will heat the water at the bottom, it is in directly contact with the heat. It will have a lesser density. So when it will have less density, the water at the top has higher density. So it will come in the downward direction, moving the water in the sideward direction, and this water then move in the upward direction. ठीक है, और फिर in this way the process will take place. ठीक है. अच्छा, अब मैं जरा सिंपली इसको थोड़ा सा मोर क्लियर करके आपको बताता हूँ. यार एक सेकंड बेटा. The actual movement would be something like this one. एक सेकंड बेटा. The water will move like this one. ये क्या हुआ? ये चीज वैसे तो समझ में आ गई होगी, मुझे इतनी वक्त में क्यों डाल दिया आप लोगों ने? ये सर आ गया समझ. ये इट वुड बी लाइक दिस वन. ठीक है, यानी वाटर जो है आपके पास इन बोथ द केसेस ऐसे मूव करेगा. ठीक है, सो अब आपके पास क्या है कि दिस प्रोसेस इज नोन एज द कन्वेक्शन प्रोसेस. ठीक है, एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? सर सर समझ नहीं आई. सर मतलब सिंपल में कि हॉट वाटर ऊपर जगह और कोल्ड वाटर नीचे पॉट की जो बेस है उसकी तरफ आ जाए. हाँ, लेकिन अभी दोबारा बता देता हूँ क्योंकि कह दिए कि समझ में नहीं आई बेटा. तो ये देखें, आपके पास ये वाटर है. असल में बोर्ड हो तो फिर तो पूरी तौर पे क्लियर समझ में आ जाता है. बोर्ड नहीं है ना, फिर वो इसलिए थोड़ी सी चीजें. अच्छा, मुझे ये बताएं कि बेटा व्हेन यू विल हीट द वाटर फ्रॉम द बॉटम, यहाँ पे आप बॉटम से हीट कर रहे हैं, सो लेट्स सपोज ये हीट कर रहे हैं आप. ठीक है, अब मुझे बताएं कि व्हाट वुड बी द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट द बॉटम. उसकी ज्यादा होगी या ऊपर वाले की ज्यादा होगी डेंसिटी? ऊपर वाले की ज्यादा होगी. बॉटम वाले की सर. बॉटम वाले की ज्यादा होगी डेंसिटी. क्यों? सर ऊपर वाले की ज्यादा होगी. ऊपर बेटा, वाले की obvious- ज्यादा होगी. हाँ जी, ऊपर वाले की इसलिए कि when you are heating you are basically increasing the main free path between the atoms. So greater is the main free path, it means lesser would be the density. ठीक है, so when you are heating water at the bottom, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, नो इट हैज, आपने हीट करना है 50 तक. तो पहले आप इसे जब हीट करेंगे तो ठीक है, इट इवन इफ इट इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, its density will be lesser compared to the upper water. ठीक है, cold water. तो आपका ये जो है, जब ये डेंसिटी कम होगी, ये वाटर भारी वाला नीचे आएगा. when it will come down, तो दूसरे वाला जो यहाँ वाला वाटर है वो it will move in the sideward direction and it will move in the upward side because heavy water will come down.
So in this way the process will continue. फिर अब जब ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे वाला क्योंकि ज्यादा हो चुका होगा हीट, तो क्या होगा, it will again come down. ठीक है, because no, it has higher density compared to the water which is at the bottom. So again it will come down and that water will again will move in the upward direction, and this way the process will carry on up to the point where it reaches up to desired temperature. ठीक है, is it clear? Yes, sir. सर अब आपको मैं एक मजे की चीज बताता हूँ, ठीक है। वो मजे की चीज बेटा ये है कि इफ यू वांट टू परफॉर्म दिस सॉर्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, टेक ए ग्लास, ठीक है, ग्लास लें, हल्का सा उसे चूल्हे पे हीट करना है वरना टूट जाएगा, ठीक है। ये ना हो कि आपके घर वाले मुझे नाराज हो जाएंगे। जस्ट टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, स्लाइटली हीटेड, या कोई भी ग्लास पेन ले लें, ठीक है, स्लाइटली हीट पानी डालें, स्लाइटली हीटेड, ठीक है, एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक इनटू इट। इंक जो है वो इसके अंदर फेंके एंड यू विल सी द सेम प्रोसेस, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है फ्लूइड्स के अंदर। एनी क्वेश्चन अगेन बेटा अप टू दिस पॉइंट? सर इसको फूड कलर से भी हम कर सकते हैं। या ऑब्वियसली कोई भी कलर्ड चीज है, इंक है, कुछ भी है आपके पास, इट विल वर्क इन द Sir? सेम वे। जी जी सर अगर हम पानी लें 1 डिग्री पे और उसको 4 तक हीट करें तो अब क्या ये भी कन्वेक्शन होगी, क्योंकि अब डेंसिटी कम होने की बजाय नीचे की बढ़ नहीं जाएगी? नहीं नहीं नहीं, उस वक्त तक 1 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो डिफरेंट होगा सिनेरियो, ठीक है, वो डिफरेंट होगा 1 to 4 तक का। उसमें जो है वो कन्वेक्शन नहीं होगी, उसमें एज इट इज। लेकिन आप अगर फर्दर हीट करते जाएंगे कंसिस्टेंटली तो तब ये है कि आपके पास ये कन्वेक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वाटर की बजाय कोई और लिक्विड ले लेंगे तो उसमें 1 to 4 पे भी वही काम होगा कन्वेक्शन वाला, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. क्योंकि मैंने जब when I was telling you the application of the sea life या aquatic life, so I specifically asked you that water has the only liquid that has different behavior at this temperature 4 and 0 degree centigrade, ठीक है। all other liquids have the same behavior that when you will increase the temperature their density will increase. Only water is the only liquid that has the maximum density at 4 degree centigrade, ठीक है। तो 1 से 4 में तो आप गर्म भी नहीं करेंगे घर में, ठीक करते हैं आप बेटा 1 से 4 तक? नहीं सर। चलें ठीक है। इसके अलावा बेटा एनी क्वेश्चन अगेन? No, sir. ओके गुड। चलें अब आपका सर हमारे सिलेबस में वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो नहीं है ना, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह है एंड पे बस लास्ट थैंक यू। हाँ सही है। वेलकम। अच्छा देन अब रेडिएशन है बेटा, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया होगा। Yes, sir. यस सर। यस यार ये एग्जांपल भी थी। चलें आपको कुछ ज्यादा ही समझाने लग पड़ा हूँ मेरा ख्याल है। अब तक तो ये चैप्टर के अगला भी खत्म हो जाना चाहिए था। चलें कोई नहीं बेटा, एंजॉय करें, बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा फिर, ठीक है। ओके सर। चलें ठीक है, ओके सर बेटा। अगर फिर अपना फ्राइडे को फ्री है तो बता दीजिएगा। जी ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। अब एक बेटा एक्चुअली टीम आनी है कह रहा था, मेरा तो ये वीकेंड भी बिजी है यूनिवर्सिटी में, सो वो कोई एक कह रहा से, हाँ तो फिर वो टीम आनी है तो उनके साथ ड्यूटी लगाई हुई, तो ये वीकेंड भी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही पाया जाऊंगा। तो वो मोस्ट प्रोबेबल कल आना है उन्होंने, तो शायद ना ही कोई मतलब आपसे हो सकता है कल क्लास भी ना हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर वो आए हुए तो फिर नेक्स्ट मंडे को कहीं बेटा एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो अभी कल बेटा आपको बता दूंगा, अभी श्योर नहीं है क्योंकि उन्होंने आना था, 18 की तारीख दी है कि सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे, तो वो फिर ड्यूटी है ऑफिशियली उनके साथ, ठीक है बेटा। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू ओके बेटा, ओके वेलकम, ओके बेटा, सब अपना ख्याल रखिएगा, वेलकम, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस
होगी हुई है बेटा, कोई नहीं, मेरे पास सारी आपकी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट होती है यार। मैंने आपको बताया, ये जान के मैं कई दफा करता हूँ कि आप लोग कहीं लगा के सोए हुए तो नहीं है या कहीं भाग तो नहीं गए हुए, इसलिए मैं बीच में मैंने सम टाइम लगा ला। हाँ क्लास इसलिए। चलो चलो ठीक है बेटा, फिर ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।